तमाम पाकिस्तानी कौम को जश्न आज़ादी की बहुत सारी मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। वो लोग जो आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमको क्या दिया है, आज की वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी माँ जी से जिन्होंने अपनी आंखों के सामने इस मुल्क को वजूद में आते देखा। इन्होंने खून के लोथड़े देखे, इन्होंने जली कटी लाशें देखी, इन्होंने मुसलमानों पे तशद्दुद होते देखा, इन्होंने बंटवारा होते देखा। ये हैं वो माँ जी जिनकी उम्र करीबन 102 साल हो चुकी है। इनके सबसे बड़े बेटे उस दिन पैदा हुए जिस दिन ये मुल्क के अजीम मार्ज़े वजूद में आया। ये इनके दूसरे या तीसरे नंबर वाले बेटे हैं जो इनके साथ मौजूद हैं। हम बारी बारी माँ जी से और इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि ये मुल्क उस वक्त कैसे बना या फिर इन्होंने क्या क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, आपने पाकिस्तान को बनते देखा एक बंदा देखे जी, सब कुछ देखे पाकिस्तान का सब कुछ देखे बंदा भी देखे टेंडा भी देखे देखे सब कुछ देखे। तो माँ जी की माशाल्लाह उम्र 102 साल है, मगर इनका जो जोली मिजाज है वो अभी तक बरकरार है। उस टाइम किवें पाकिस्तान बनिया, की हालात सन? उधर उधर जो बाबा जिन्हों ने जे है ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਣਾ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਅਸਾਂ ਨਿਕਲ ਪੇਖੜ ਜਾਣਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਖਣ ਕੀ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ? ਸ਼ਕਰਗੜ ਸ਼ਕਰ ਸਾਡਾ ਨਾਰਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ संग्याल। माँ जी की अभी वैसे माशाल्लाह यादाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो भूल जाती हैं। तो इनके इल्मदीन कौन सी को चकिया है ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਨਸਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਦਕ, ਦੋ ਹੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਭੁੱਖੇ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਸੰਗਿਆਲ ਕਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਾ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਟ ਪਟੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਬਣਿਆ ਕਾਜੀ ਦੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਕੂੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਣੀ ਜੋ ਮਸਲਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੰਗਿਆ ਬੋੜੀ ਮੇਰੇ ਮਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕੋਠੀ 'ਚ ਪਾ ਉਹ ਰੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਜੜ ਮੁਖੜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਗਾਈ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਉਜੜ ਪੁਖੜ ਕੇ ਆਏ ਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁੱਜਰ बड़े बड़े। माँ जी ये बता रही हैं कि जो उधर से मुसलमान आए थे जिनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी उस वक्त, ये चूँकि पाकिस्तान के हिस्से में ही रहती थी शकरगढ़ में, तो इन्होंने जो दाने वगैरह गंदम के इकट्ठे किए हुए थे, फिर इनके पास कुछ जानवर थे, उनका जो दूध शूध होता था तो ये उन लोगों को दिया करते थे। ये दसो माँ जी कि तुसी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਦਾਣੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ? ਜੋ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਸਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਸ਼ੋਨਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਖਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਦੱਬ ਦੁੱਬ ਗਏ ਸਨ? ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਨਿਆਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਬੰਸਾ
ਮਾਮੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਤਮੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਮਸੀਤੇ ਆਣ ਕੇ। ਅਖੀਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਭੇਜ ਛੜੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। उस टाइम कत्लो गारत किन्नी को हुई सी? ਕਤਲ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਤੇ ਮਸੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ मतलब कि कत्ल होने के लिए वो उन्होंने मस्जिद का भी जो हिंदू वगैरह थे या जो दूसरे थे उन्होंने सहारा लिया था और वो जैली तौर पे बने हुए थे। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आपके जो सबसे बड़े भाई हैं वो 14 अगस्त को पैदा हुए? जी मोहम्मद यूसुफ उनका नाम है जी। 14 अगस्त को जो है ना जिस दिन पाकिस्तान बना है उस दिन उनकी पैदाइश हुई थी और इस वक्त उनकी उम्र 74 ईयर है। आप टोटल कितने बहन भाई? ਤੇਰੇ ਬਾਂਗਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰੀ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਇਲਮਦੀਨ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਜੇਠ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਵਿਆਹੀ ਦੇ ਘਰ ਸਾਦਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਆ ਨਸਾਰ। आप सर टोटल कितने बहन भाई? 7 भाई और 1 बहन, 8 जो है ना लोग हैं। माँ जी आपको काफ़ी कुछ बताती होंगी उस दौर का क्योंकि अभी तो थोड़ी इनकी याददाश्त माशाल्लाह बेहतर है कुछ कम है। जी वालदा मोहतरमा बताती हैं कि उस वक़्त के जो हालात थे जिस वक़्त पाकिस्तान बना था और उस वक़्त जो मुसलमानों की हालत तो अपनी जगह थी लेकिन हिंदू और सिखों ने जो है ना बहुत ज़्यादा इसको लफ्ज़ बोलते हैं गदर के गदर मचाया था। गदर से मुराद ये है कि बहुत लूट मार और जो है ना खून खराबा किया था। तो ये वालदा मोहतरमा कभी कभी ये बताती हैं और लेकर आबीदा हो जाती हैं कि पाकिस्तान जो है ना जिस मकसद के लिए बना था यहाँ आकर वो चीज़ें जो हैं महसूस नहीं हो रही, ना हमें पता चल रहा है कि पाकिस्तान जो है हमने इतनी कुर्बानियों के साथ बनाया था लेकिन उस पर पाकिस्तान के अंदर वो कुर्बानियों की कदर को ही नहीं की गई। आपकी जो वालदा हैं इनके भी बहन भाई इनसे उस वक्त बंटवारे के वक्त बिछड़े थे? ये हमारा जो गांव था वो यहाँ नारवाल वाली साइड पे जो है पहले से यहाँ थे। इन हमारे कोई अजीज़ रिश्तेदार इस तरह जो है ना बंटवारे में जो तकसीम जो है ना बिछड़े नहीं थे। अम्मा जी ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ पैगाम की दोगे सब कुछ बड़ा कुछ देखे है ना हमने की कोई जमा कर सर आप मुझे बताएं क्योंकि आप तो माशाल्लाह अपनी वालदा के बहुत करीब हैं। मुझे सबसे पहले आप अपनी एज बताएं, आपकी माशाल्लाह एज कितनी है? 61 मेरी 61 जो एज है इस वक्त 61 2 फरवरी 1961 की मेरी पैदाइश है। तो कुछ आप पाकिस्तान के बारे में जो वालदा मोहतरमा बताती हैं, असल में वालदा भी मेरे वालिद साहब वो भी और बाकी जो अज़ीज़ क़ारब हैं जो बताते हैं, उससे जो मैंने महसूस किया है कि ये पाकिस्तान जो है एक ऐसे ही जो हादसाती तौर पे वजूद में नहीं आया। पाकिस्तान वैसे तो जो 14 अगस्त आप मनाते हैं 14 अगस्त को अपना वजूद में आया, लेकिन हकीकत जो देखी जाए तो पाकिस्तान जो है रमज़ानुल मुबारक में शब कदर की रात को जो है वो वजूद में आया था। और इसी तरह कुरान पाक जो है अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर इस ज़मीन के ऊपर नाज़िल किया, वो भी शब कदर है। कुरान और पाकिस्तान ये एक बहुत बड़ा मोज़ा है पाकिस्तान के लिए। अगर इस पर गौर किया जाए तो पाकिस्तान का जो असल जो है पाकिस्तान की अल्लाह ताला ने जो हिकमत है पाकिस्तान बनने की, वो वाहिद ऐसी मुमलकत दुनिया में है जो कलमे की बुनियाद पर जो है ना वह मार्ज़ वजूद में आई थी। एक पाकिस्तान है इस बुनियाद पे जो हमारा दीन इस्लाम के नाम पे वजूद में आया था, और एक मदीना है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि कुरान पाक का मोज़ा और पाकिस्तान का मोज़ा ये एक कड़ी है, और इस कड़ी को जो है ना अगर आप गौर करें, फ़िक्र करें, सोचें तो इसके पीछे जो है हिकमत अल्लाह ताला के, ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा मोज़ा है पाकिस्तान
जो मार्ज वजूद में है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। ना हम इस पर गौर करते हैं, ना हम इस पर फ़िक्र करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर जो है ना पाकिस्तान हासिल किया गया था। और उस वक़्त एक ही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा माँ जी, हूँ तुम जानना ना मेरे नाल नारा लाना है पाकिस्तान जिंदाबाद हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पैंदाबाद। जब तक ऐसे बुजुर्ग हैं, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਸੰਗਿਆਰ ਯਾਰ ਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਲਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਨਾ ਬੱਦਲਾ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, जिस तरह सुहाग रस्सा पा के ना मुड़िया तेरे अंगर ते खिंच के ना ते बाहर जाकर सुट चढ़िया। नमाज पढ़ते हुए को गोली मार दी गई थी। जो हमारे मुसलमान नौजवान थे उस वक्त मस्जिद में इतना जुल्म व सितम ढाया गया था। बहरहाल जब तक ऐसे बुज़ुर्ग हैं, हमारा मुल्क में बरकत भी है, हमारा मुल्क ता क़यामत इंशाल्लाह सलामत रहेगा। तो आपने बहुत सारी दुआएं करनी है इन माँ जी के लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।